Good morning, everyone. Here we are for celebrating Entrepreneurship Day, which falls on 21st August. And this event is organized by Institutions Innovation Council 4.0, means it's our fourth session. And this session is not only to make you aware about entrepreneurship, but also about what Institutions Innovation Council is doing the whole year and what our department expects from you people, right? So you are students of all classes, BCA, BSc. It's a mixed crowd, right? And some of you have already attended so many lectures of Innovation Council, so you are well aware that we promote entrepreneurship, startup culture, and IPRs and innovation also. Here I want to elaborate about what is entrepreneur, what is the role of entrepreneur, and how you can be entrepreneur. What is the step? What are the steps included in the journey of an entrepreneur, right? And beside that, I want you people to understand that this lecture is for you. It is not just for celebrating the entrepreneurship day, but this is meant for you because we wanted you people to would be entrepreneur, right? I just see would be entrepreneurs in you people, and I just want, if you want any kind of help for your venture, then you can come forward. You must be knowing that there are agencies and even our colleges having policies to promote your innovation, promote your ideas. So that's possible only if you attend our lectures, be part of Innovation Council. We will very soon we will float a form also for the students who want to be part of our council, and then they will have to attend lectures. Lecture means not only lectures, but you will get means familiar with so many things, what they are, what they meant to be. Because India is a very populated country, we need people who can generate jobs. We should not be only job seekers, but we should be job generators. So this lecture is for you people, right? So we are celebrating Entrepreneurship Day, and then here I am to encourage you people to be entrepreneur with the help of this session. So the title of my session is Entrepreneurship, a Bird's View. Cursory look on entrepreneurship. The agenda of the presentation includes what is entrepreneur, how it is different from entrepreneurships, different types of entrepreneurship, qualities meant for an entrepreneur, journey from idea generation to business, how if you have idea, how you can make it to a business, what is the role of tech entrepreneurs, important institutes for entrepreneurship development, and online courses on entrepreneurship development. This is the main agenda of this session. So, what do you think? What is an entrepreneur? आपके घर में आपके फादर जॉब हो सकता ना कर रहे हो, उनका अपना बिजनेस हो, do you consider it as him as an entrepreneur? How many of you consider as an entrepreneur? Okay. Why? Because he has his own business. Own business. He has started it. So, Means which kind of business it is? like it is of some car accessories. Right. So he has started his own business of selling it. Yeah. So means you get the idea of starting a business from real life problems. He might have thought कि कार की accessories जो हैं वो उनके एरिया में कम easily available नहीं हैं, तो he can arrange them and he can sell them. Right, from there he might have started his business and slowly it increased. Right, now people might be knowing that this is the means person from whom we can take accessories at reasonable prices. Right, and he might be expanding the business in different way. बिकॉज अगर बिजनेस को आप नई डायमेंशन नहीं देंगे तो वो बिजनेस एक टाइम पे आगे जो है ऑब्सोलीट हो जाएगा, राइट? तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो वर्ड है, इट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड
prendere, which means to undertake. The person who does it is known as undertaker. Means the person who does business is known as undertaker, and the process by which that person does everything is called entrepreneurship. Right? हम यहाँ पे कहते हैं कि entrepreneur is an innovator. Right? Always entrepreneur is not an innovator. अगर हमने एक्सेसरी का बिजनेस करा है तो वो उन्होंने जस्ट सोचा कि और भी लोग करते हैं और उस बिजनेस को वो भी कर रहे हैं, तो मीन्स वो एक सेम टाइप का हो गया. बट इनोवेशन मीन्स कि एक टोटली न्यू आइडिया या 2-4 आइडियाज को आपने कंबाइन करके एक नया शेप दिया. राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने एक पुराने आइडिया को लिया वो एंटरप्रेन्योर नहीं है और जिसने नए आइडिया को लिया वो एंटरप्रेन्योर है. राइट? जो नए आइडियाज को लेके इनोवेशन अपनी सराउंडिंग से प्रॉब्लम्स को लेके चलता है उसको स्टार्टअप वगैरह कह देते हैं हम, कि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट उसको स्टार्टअप कहती है. आप एक नया आइडिया लाइए, उसको फिर कन्वर्ट करिए अपना ये बिजनेस में, उसको मोनेटाइज करिए और उससे अपना बेनिफिट लीजिए, तो उसको स्टार्टअप हम कह देते हैं. आपने सुना होगा बहुत सारी टर्म्स की, कंप्यूटर के भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं. राइट? तो यहाँ पे हम लोग जब कहते हैं कि वी आर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तो हम शुरू में एक छोटे बिजनेस की बात करते हैं जो बेस्ड ऑन न्यू आइडिया है. राइट? फिर उस स्टार्टअप के बाद हम अल्टीमेटली हर स्टार्टअप जो है या तो वो खत्म हो जाता है या वो एंटरप्रेन्योरशिप बड़े एंटरप्राइज में चेंज हो जाता है, यूनिकॉर्न्स बन जाते हैं. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं एन एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर और सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज. क्योंकि बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट गुड्स, बिजनेस इज आल्सो अबाउट आइडियाज. यू सेल योर आइडियाज, यू सेल योर सर्विसेज. कंप्यूटर में तो हम मोस्टली सर्विसेज को ही सेल करते हैं. राइट? बिजनेस है आपका, प्रोसीजर्स हैं आपके, जैसे इवेंट मैनेजमेंट है, आप एक प्रोसीजर को फॉलो करके आप इवेंट को मैनेज कर रहे हो. तो एन एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर और सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज, बिजनेस प्रोसीजर्स. वो एक बिजनेस को क्रिएट करता है, रिस्क भी सहन करता है. राइट? एक एम्प्लॉय को रिस्क होता है. जैसे मैं यहाँ आती हूँ, मैं आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ MCM DAV कॉलेज, मैं आती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, तो मुझे एक मंथ के बाद एक फिक्स सैलरी मिल जाएगी. लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है उसका कुछ पता नहीं है, उसको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है. तो ही बियर्स मोस्ट ऑफ द रिस्क, एंजॉय मोस्ट ऑफ द रिवार्ड्स. और अगर उसका मतलब कि कोई बेनिफिट होता है, मेरी एक फिक्स सैलरी है, एक एम्प्लॉय की फिक्स सैलरी है, बट अगर कोई मतलब आपका एंटरप्रेन्योर है तो उसको रिवार्ड्स भी उसी के हैं और रिस्क भी उसी के. देन सीक्स अपॉर्चुनिटीज. मार्केट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, इफ ही हैज आइडिया, ही हैज मींस एंथ्यू टू डू दैट, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर सकता है. राइट? एम्प्लॉय के पास उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. दैट्स व्हाई वी से यू शुड बी जॉब क्रिएटर, नॉट जॉब सीकर. Because if you want, you should have more flexibility, more means independence. So then you should go for entrepreneurship. Then entrepreneur is a person, and entrepreneurship is process by which the whole thing is carried out. Right? Now already I am talking about employee versus entrepreneur. तो मेन 4 यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करे हैं. फर्स्ट, if I am doing here work, I go back home, I won't like to carry my work. राइट? यही होता है. वो अलग बात है कि आजकल एम्प्लॉइज को कैरी करना पड़ता है ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में, बट अदरवाइज एम्प्लॉय वंस ही और शी गोज बैक, तो दे डोंट वांट टू कैरी देयर वर्क विद देमसेल्व्स. राइट? तो वर्क को वो घर पे कैरी नहीं करते, बट जो एंटरप्रेन्योर है वो ऑल द टाइम इन वर्क. राइट? सम ऑफ यू माइट लाइक कि मैं तो सारा दिन नहीं काम करना चाहूंगी, बट बिजनेस में जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि बिजनेस में दे डोंट टेक लीव अनलेस, अगर एंथ्यू है, अगर काम करने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ बनने की इच्छा है, तो दे डोंट स्टॉप. लेकिन एम्प्लॉय जो है उसकी 9 to 5, 9 to 6 ऐसे कुछ ना कुछ जॉब के फिक्स्ड आवर्स होते हैं. राइट? उसके बाद सीरियस एफर्ट्स. कुछ एम्प्लॉय सीरियस एफर्ट्स डालते हैं, कुछ को जॉब मिल जाती है, देन दे डोंट पुश. राइट? लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो ये नहीं कर सकता. यहाँ पे एक बिजनेस में सारे के सारे एंटरप्रेन्योर नहीं है. जिसका बिजनेस है वही एंटरप्रेन्योर है, बाकी के तो सब उसके एम्प्लॉइज हो गए ना. बाकी उनमें वो एंथ्यू हो सकता है, उनमें वो एंथ्यू नहीं भी हो सकता. देन इज सपोर्ट. आई विल डू समथिंग, आई एम एन एम्प्लॉय, आई विल डू समथिंग फॉर विच आई थिंक I will deserve, I will get something in return.
राइट, बट मीन्स और इट शुड बी पार्ट ऑफ माई जॉब, जॉब का पार्ट है इसलिए मैं इसको कर रही हूँ, राइट। लेकिन एंटरप्रेन्योर ऐसी और भी चीजें करेगा जिससे उसके बिजनेस को ओवरऑल इम्पेचस मिले, राइट, उसको एक एनकरेजमेंट मिले। और इनकम जो है एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड इनकम, ये मैंने पहले ही बता दिया कि एट द एंड ऑफ द मंथ एम्प्लॉय को फिक्स्ड सैलरी मिल जाती है। एंटरप्रेन्योर को शुरू में हो सकता है ना मिले, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, तब वो सर्वाइव कैसे करेगा। तो जनरली यही एक हिंड्रेंस होती है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जा पाते, उनके पास आइडियाज होते हैं बट दे डोंट गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो इसको करने के लिए मतलब कि इस गैप को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं। गवर्नमेंट ने अपनी निस्ट पॉलिसी चलाई है, सिस्ट पॉलिसी चलाई है। निस्ट मीन्स नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, जिसके मीन्स अंडर आपको वो ग्रांट दे सकती है इफ यू हैव गुड आइडिया। आपने शार्क टैंक किसने देखा है, कितने बच्चों ने शार्क टैंक देखा है, उसमें क्या था, आज की डेट में हमारे पास ऐसे इवेंट्स होने लगे हैं, राइट, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जिनमें आपको मतलब कि अगर आइडिया है तो यू कैन गेट दैट आइडिया मोनेटाइज्ड, राइट, आपको मनी मिल जाती है। तो स्टार्टिंग में एक एम्प्लॉय के पास इनकम होती है लेकिन फिर वो स्टेगनेट हो जाती है आफ्टर फ्यू इयर्स, फिर उनके पास उतनी ग्रोथ का नहीं, उतना एनक्यू का चांस नहीं होता। लेकिन एक जो एंटरप्रेन्योर है शुरू में स्ट्रगल है, लेकिन वंस सेटल्ड, वंस इनोवेटिव, हमेशा अलग अलग डायमेंशन में वर्क कर रहे हैं, तो देन दे कैन इंक्रीज द साइज ऑफ देयर एंटरप्राइज, राइट। सो हियर कम्स, आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो कितने लोगों को लगता है कि मैं इस टाइप का एंटरप्रेन्योर बनूंगी, कुछ आइडिया कि मैं सोशल एंटरप्रेन्योर बनूं, मैं कल्चरल एंटरप्रेन्योर बनूं। कितने लोगों ने आज से 10 साल पहले सुना था कि इवेंट मैनेजमेंट होती है। आजकल बहुत सारे लोग हैं इसमें, मैरिज जो है वो थ्रू इवेंट मैनेजर ही हो रही है, राइट, है ना। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का, किस टाइप का बिजनेस है उसके बेसिस पे, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके बेसिस पे। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट। ऐसे ही ओनरशिप के बेस में स्मॉल सेगमेंट है, मिडल सेगमेंट है, लार्ज सेगमेंट है, बिजनेस का साइज क्या है, राइट। तो हियर कम्स द टाइप ऑफ बिजनेस। आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो, कार मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, शेयर मार्केट है, आप शेयर मार्केट में जॉब कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा दे चेंज देयर प्रोफेशन एंड गो इनटू शेयर मार्केट। देन एग्रीकल्चर बेस्ड कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि इन 2 दिन के लॉन्ग वीकेंड में हमारी सोसाइटी में एक पर्सन ने अपना स्टॉल लगाया। ही वाज सेइंग कि उनके पास 500 उन्होंने एनिमल्स करे हुए हैं, तो उनको उन्होंने जैसे आपने सुना होगा कि एनिमल्स को एक बीमारी भी चल रही है आजकल, राइट। तो सो वी आर मीन्स अवेयर कि हमने भी खुला दूध नहीं देना। बट ही वाज सेइंग कि IIT ग्रेजुएट है, उसने 500 जो है फेलोज एंड काउस रख के उसने ये दूध का प्रोसीजर शुरू करा है। व्हेन आई आस्क्ड अबाउट दिस कंसर्न कि वो तो बीमार हो सकती है, तो हमें कैसा पता चलेगा, व्हाई वी शुड गो फॉर दिस ओपन मिल्क टाइप। तो वो भी उसने बताया कि हम वेदका की तरह ही उसको पैकेट्स में ही दे रहे हैं, पर गाय वगैरह को हमने सेंसर्स लगाए हुए हैं। जो एनिमल थोड़ा ज्यादा देर बैठा रहेगा उसको हम फिर मॉनिटर करेंगे, जिसकी मूवमेंट जो है ना वो सारे एनिमल्स की वो ट्रैक कर रहे हैं थ्रू द सेंसर्स। और अगर 500 एनिमल्स को सेंसर लगाए हुए हैं और उसके बेसिस पे जो बीमार होती है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। सी द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरीथिंग एंड आइडियाज देखिए। देन इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बिजनेस भी बहुत सारा है। बहुत सारे लोगों को लगा कि जी +2 के बाद जो है बच्चों को JEE मेन क्लियर करना होता है, तो आजकल इट्स अ वेल मीन्स एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, राइट। तो किसी ना किसी को तो फर्स्ट टाइम आइडिया आया होगा। ट्यूशन है, ट्यूशन से कोचिंग सेंटर आया, कोचिंग सेंटर से अब और भी लेवल के आ रहे हैं, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। योर एंटरप्रेन्योर, यू कैन बी टेक्निकल entrepreneur or you might be non-technical entrepreneur, right? फिर उसके बाद ओनरशिप जो है प्राइवेट करनी है,
स्टेट एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई लोग प्रोजेक्ट्स लेते हैं। ऐसे ही जॉइंट एंटरप्रेन्योर है कि आपने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स भी सुनी होंगी, या लोगों के कोलैबोरेशन में भी होता है। अगर हमने बीकॉम के स्टूडेंट्स हों तो हमें पता होता है कि जॉइंट, प्राइवेट और उनके राइट्स क्या हैं। तो व्हेन यू गो इनटू द बिजनेस यू गो थ्रू देयर राइट्स आल्सो। आप नेट पे सर्च करिए, आपको पता चल जाता है, राइट। लेकिन यू शुड अवेयर अबाउट दीज टर्म्स कि ये ऐसा भी हो सकता है। 3-4 फ्रेंड्स मिलके, हमारी कॉलोनी में क्या है, सोसाइटी में क्या है कि एक ब्यूटी पार्लर है और उसके पीछे एक EWS सोसाइटी, राइट। हम सारी गर्ल्स जो हैं वहां से आती हैं, सारी गर्ल्स वहां से आती हैं। तो आई जस्ट आस्क कि भाई बहुत सारे लोगों को अब तो ट्रेनिंग होगी होगी, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द EWS कॉलोनी माइट बी नोइंग कि कैसे हमने ये करना है। तो दैट गर्ल टोल्ड मी कि 3-4 लड़कियां मिलके फिर दूर के किसी सेक्टर में ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। तो वो भी एक किस्म से छोटा सा है, और जो लेडी उनको सिखा रही है वो थोड़ा चार्ज भी कर रही है, थोड़ा सोशल सर्विस भी कर रही है, राइट। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो गई वो। तो इस तरह से ही साइज ऑफ बिजनेस के बेसिस पे भी स्मॉल, मीडियम, लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर है। ये शुरू में ही बड़ा एंटरप्राइज उसी का होता है जिसके फोर फादर्स वगैरह इस बिजनेस में। अदरवाइज स्टार्टिंग सबको कहीं ना कहीं शुरू में थोड़े लेवल से करनी पड़ती है, राइट। हमारी एक स्टूडेंट पिछले साल हम एक जल्दी ही एक सेशन ऑर्गेनाइज करवाने लगे हैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, हमने सोचा हुआ है फोटो एडिटिंग का, राइट। तो फोटो एडिटिंग में क्या नाम उस लड़की का, निकिता है, थर्ड ईयर की, अभी जो बैच गया है उसमें थी वो। तो शी वाज डूइंग ग्राफिक डिजाइन, राइट। थर्ड ईयर में ग्राफिक डिजाइनिंग का BCA में पेपर है, बट वो फर्स्ट ईयर से ही उसने अपने से सीखा करा, और वो बाहर से ऑर्डर लेके उनके मैरिज के कार्ड्स बना रही हैं और इवेंट्स के कार्ड बना रही हैं, और ऐसे करके ग्राफिक डिजाइनिंग को उसने अपना बिजनेस बना लिया, राइट। अब हमने फिर उसने हमसे बात करी, तो वी हैव कॉल्ड हर टू ऑर्गेनाइज वन वर्कशॉप ऑफ 2 hours डेली फॉर 1 week। तो इफ एनी वन ऑफ इंटरेस्टेड, वैसे हमने सेकेंड ईयर के लिए रखा, राइट। तो इस तरीके से हमारे अपने स्टूडेंट्स भी कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर गोइंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। देन अदर एरियाज, ये था एक ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो हैं तो वही एरियाज, लेकिन उनको और भी एक क्लासिफाई करा, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। कल्चरल एक्टिविटीज करके रेवेन्यू जनरेट करना। आपने ये तो सुना ही होगा, एक्टर्स जो हैं या सिंगर्स जो हैं बाहर जाते हैं कनाडा वगैरह में, वहाँ पे इंडियंस हैं, उनके लिए वो अपना लाइव शो करते हैं, और बहुत सारे वो जब वो गा रहे हैं तो बहुत सारे लोग उनका इवेंट मैनेज कर रहे होंगे, राइट। तो देन इट मीन्स वो कल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू अपनी इनकम ले रहे हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू कल्चरल एक्टिविटीज। कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कार है कोई बना रहा है, कोई ट्रैक्टर बना रहा है, वैसा कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, बट थ्रू सिंगिंग, थ्रू एक्टिंग दे आर अर्निंग। दे क्रिएट एंड शेयर कल्चरल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मैं कल्चरल प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, लाइक आर्ट है, म्यूजिक है, कार्टून फिल्म्स है। इवन आप में से बहुत सारे बच्चे एनिमेशन में जा सकते हैं। वंस यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, आप एनिमेशन का कोर्स करो, यू कैन गो फॉर एनिमेशन, राइट। तो पर्पस, और इसका कई बार कल्चरल एक्टिविटीज का क्या होता है, हाईलाइट करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स को। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज सोशल प्रॉब्लम्स के बेस पे बनती हैं, तो दे आर अर्निंग थ्रू कल्चरल एक्टिविटीज, तो वी कैन कॉल देम कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स। देन इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। जनरली पीपल थिंक कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो तो कर्सी है। हम एंटरप्रेन्योर उसको कहते ही नहीं जो इनकम नहीं जनरेट करता, जो बिजनेस नहीं है, ठीक है, जिसके थ्रू इनकम नहीं आती। हम कमर्शियल लैंग्वेज में उसको बिजनेस मतलब कि मानते ही नहीं है। वो सोशल वर्क, टोटली सोशल वर्क होगा। लेकिन जिस वर्क के साथ आप मनी भी अर्न कर रहे हो और आप सोशल कॉज के लिए भी हो, तो दैट इज कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। आप सोशल इश्यूज को कॉमर्स के साथ कंबाइन कर देते हो, कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स को लेते हो, आप रिस्क लेते हो, लोगों को समझाते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो रद्दी इकट्ठी कर लेते हैं लोगों से, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रद्दी उनको दे देते हैं। वो फिर क्या करते हैं, गांव की लेडीज को लगा के उनसे बेल्ट्स बनवाते हैं या उनसे कोई और मटेरियल बनवाते हैं।
तो वो भी एक किस्म का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि उसको सेल करने के बाद लेडीज आर गेटिंग इनकम, दे आर गेटिंग स्किल फ्रॉम दैट पर्सन, ठीक है, उनकी जो एजेंसी है वो उनको स्किल दे रही है, उसके बाद वो जो काम कर रही है दे आर एबल टू सेल दैट वर्क। तो इसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं। मोहम्मद यूनुस खान है, एक बांग्लादेशी है, ही इज कॉल्ड पुअर पीपल ऑफ फाउंडेड ग्रामीण बैंक, ही फाउंडेड ग्रामीण बैंक एंड माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस, छोटे लेवल पे फाइनेंस करती। बैंक जो है, अब तो बैंक में स्टार्टअप्स कल्चर आ गया है, तो दे आर एबल टू डू दैट, बट बिफोर दैट very number of years back he was giving money to small enterprises, right, जो छोटे enterprise खोलना चाहते थे, तो he started even in India this bank was started, ये ग्रामीण बैंक जो कहते हैं हमको, तो even he was awarded 2006 Nobel Prize। इसी तरह से उर्वशी सानी हैं, उन्होंने इलिटरेसी के अगेंस्ट फाइट करी थ्रू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। ऐसे ही हरीश पांडे हैं, उन्होंने सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स को प्रमोट करा रूरल एरियाज में। देन संतोष पारुलीकर हैं, पीपल ट्री के नाम से उनको जाना जाता है। ही क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज बाय मींस सेविंग द पीपल ट्री एंड creating number of jobs for them. Then next is ecopreneurship, सस्टेनेबल चीजों का बिजनेस करना। सोलर आइटम्स आ जाती हैं, राइट, उनका बिजनेस करना, बिकॉज वी आर सेविंग द एनवायरमेंट आल्सो। तो दिस इज डूइंग बिजनेस अडॉप्टिंग एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। कटलरी ऐसी के साथ डील करना, ऐसे पत्तों की कटलरी बनाना कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सोलर पैनल लगाए, हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू इकोप्रेन्योरशिप। देन इज नेटप्रेन्योरशिप। पेटीएम का नाम, पेटीएम तो यूज करते होंगे आप सब लोग, राइट, और कोरोना टाइम में इसको बहुत ज्यादा पुश मिला इसके बिजनेस को, राइट। जब सारे बिजनेस बैठ रहे थे तो पेटीएम जो था वो राइज कर रहा था, बिकॉज एट दैट टाइम ये भी टाइमिंग होती है कि कोई बिजनेस किस टाइम पे पर्टिकुलरली उसके लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, राइट। ऐसे जितने भी बिजनेस नेट बेस्ड थे वो सारे उस टाइम पे ग्रो करे, जब कोरोना टाइम में सब लोग अपने घर के अंदर सिमट गए थे, राइट। तो ये अमेजोन है, पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, इन सब के बिजनेस ऑलरेडी नेट बेस्ड। हम लोगों के पास मोबिलिटी अब कम हो रही है, हम लोग कहीं नहीं जाना चाहते, घर बैठे हम सब कुछ करना चाहते हैं थ्रू नेट, तो this business is also flourishing. Then entrepreneurship. जैसे हम आपको कहें कि आप क्लास में बैठ के कुछ इनोवेशन करें, क्लास में बैठ के पहले बैठो, आज चलो, होता ही है ना कभी, है ना, कि आज कुछ नहीं करना, आज आप अपना कोई आइडिया लाइए। ऐसे ही कुछ कंपनीज जो हैं अपने एम्प्लॉयज को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने की परमिशन देती हैं, एंड देन दे से कि हाँ जी आप इस टाइम पे कुछ ऐसा करिए, तो मतलब कि व्हेन योर माइंड इज फ्री यू कैन क्रिएट समथिंग न्यू। क्रिएटिविटी भी उसी टाइम आती है जब आप कुछ अलग से थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट देके कुछ सोच रहे हैं, राइट। जैसे इसमें यहाँ मैंने गेम्स इन अ बॉक्स लगाया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ये अपने एम्प्लॉयज को रिक्रिएशनल की फैसिलिटीज देता है। और एक ये भी माना जाता है कि कहते हैं कि कंप्यूटर्स में जो पर्सन ज्यादा लेजी है उसको जॉब दो, ताकि वो प्रोसीजर को स्पीड अप करने के लिए सोचे। वो उठना नहीं चाहता अपनी जगह से, और वो सोचे कि बैठे बैठे ही, कोई लेजी पर्सन ही होगा जिसने सोचा होगा कि फैन मतलब एसी रिमोट से चले, है ना, कि मैं बैठे बैठे ही इसको ऑन कर दूं, ऑफ कर दूं। तो वो ऐसे लोगों को कि वो प्रोसीजर्स को आसान करेंगे, तो दे प्रमोट सर्टन थिंग्स। तो उसमें गेम्स इन अ बॉक्स भी माइक्रोसॉफ्ट का ये निकल के आया प्रोडक्ट, कि जब एम्प्लॉयज वहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे तो देन दे थॉट अबाउट दिस, राइट। तो इस टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहते हैं, इंट्राप्रेन्योरशिप। देन इज टेक्नोप्रेन्योरशिप, सॉरी स्पेलिंग यहाँ आई की जगह टेक्नो को आना चाहिए। तो जो कंप्यूटर्स सेवी हैं, जो टेक्नोलॉजी सेवी हैं,
जैसे बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट का इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने संभाला हुआ है, स्टीव जॉब्स जो अब नहीं रहे हैं एप्पल का है, ऐसे ही ब्रिन एंड लैरी पेज जो हैं गूगल के हैं, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हैं, ट्विटर के, अब ट्विटर का तो शायद हो गया है, ये किसी और ने ले लिया है, इंस्टाग्राम के केविन स्ट्रॉन्ग है। सो इन सब की लाइफ जो देखें हम अगर एंटरप्रेन्योर्स की, तो हमें कुछ क्वालिटीज नजर आती हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड I will also discuss techno entrepreneurs which are really working in India, right? So when we study their lives, तो ये कुछ qualities हैं, they are self disciplined, right? उनका एक लाइफ टाइम है हर चीज करने, ये नहीं है when other people are sleeping they are doing their work, right? Whenever we see some person कि वो बहुत अच्छा सेटल है, तो हमेशा ये याद रखना है कि जब आप लोग सो रहे थे उस टाइम वो कुछ जाग के करना, राइट? कि उस पर्सन ने अपने आप जब बाकी लग्जरी की लाइफ जी रहे थे तो उसने अपनी लाइफ को सेल्फ डिसिप्लिन करके अपना काम कर रहा था, सेल्फ स्टार्टर, मोटिवेटेड। जैसे कोई काम करे तो उस टाइम पे अगर कोई काम नहीं करना चाहता, जैसे मैंने सुबह 10 लोगों को पूछा एक काम करने के लिए, ठीक है, आप देख रहे हो इधर उधर कि हम कर सकते हैं या नहीं, हो सकता है उनमें से एक आके कहे कि मैं कर सकता हूँ, वो क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड, राइट? तो मीन्स सेल्फ मोटिवेशन भी हर एक को नहीं होती है। ये कुछ क्लास में 50 बच्चे होते हैं, टीचर तो सबको इक्वली गुड पढ़ाता है, पर उनमें से 3-4 जो है वो बहुत अच्छे निकल आते हैं, उनके लिए टीचर ने कुछ अलग से नहीं किया होता, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। सो यू आर टू बी वन ऑफ दोस। एक्शन एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड। जनरली क्या होता है कि हम कहते हैं यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, कितने लोग हैं कि वो साथ में सोल्यूशन भी लेके आते हैं। और आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो सिर्फ प्रॉब्लम लेके आता है, दोस पर्सन्स आर नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, राइट? सोल्यूशन भी साथ में लाने चाहिए। सो यू शुड बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। एंटरप्रेन्योर बनो या ना बनो, ये वाले कैरेक्टर्स जो हैं ये सबके लिए। देन इज क्रिएटिव माइंड। योर माइंड विल बी क्रिएटिव। ये जो है एक चीज, कुछ की क्रिएटिविटी जो है वो बॉर्न क्रिएटिविटी होती है, कुछ को अपने आप को चैनलाइज करना पड़ता है। देयर इज नथिंग लाइक इसको तो है ही है। कुछ लर्निंग के थ्रू आपने कई चीजें सीखी एंड देन यू गेट आइडिया, दूसरों के आइडियाज को देख के उसमें चेंज करने का आइडिया भी आता है कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं। मैं आगे जो टेक्नो एंटरप्रेन्योर्स की बात करूंगी, उन सब लोगों ने जो बाहर की कंट्रीज में ऐसा एक आध काम होता था उसको कॉपी करके अपना एक आइडिया बनाया, राइट? तो फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल रहे। तो जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो व्हेन वी डोंट से कि एक ब्रांड न्यू ही चीज नहीं टपकी है जो कभी पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, चीजें वही थी, आपने उनको कंबाइन करा, एक नई शेप दी, ठीक है, और उसको मार्केट में उतारा, उसके थ्रू आपने बेनिफिट लिया। टैलेंटेड, रेजिलिएंट, परसिवरेंस, ये सब चीजें जो हैं आपके में कितनी पेशेंस है, काउंट्स। अगर आपको मैंने आपको पहले बताया कि एंटरप्रेन्योर जो है उसको हो सकता है पहले 3-4 साल कोई इनकम ना हो, राइट? तो उस टाइम पे क्या काम आएगा, परसिवरेंस, राइट? लेकिन रोटी तो खाने को मिलनी ही चाहिए, है ना? तो टैलेंटेड, वो टैलेंटेड भी नेचुरली वही पर्सन, दूसरे एक बिजनेस जो है उसके लिए एक सिंगल पर्सन काफी नहीं होता, उसको एक टीम के साथ काम करना पड़ता है, राइट? और अलग अलग उस टीम में अलग अलग लोगों को करना पड़ता है। अपने कॉलेज में भी जब हम एक काम करते हैं, आपने देखा हो एक मैम जो है वो उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, दूसरी मैम ने बच्चों को अरेंज करा, तीसरे ने अटेंडेंस ले ली, टीम वर्क होता है हर काम में, और उस टीम में कौन से काम के लिए परफेक्ट है ये उसको आइडेंटिफाई करना होता है। इसकी भी टैलेंट जो है एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आई वांट टू डू इट, कोई भी कम वट में आई हैव टू डू इट। देन स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, कई बार बिजनेस होते हैं 10 कामों से भी हो जाते हैं बट वो शॉर्ट लिव होते हैं। कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में, जहाँ शॉर्टकट होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सो यू हैव टू फॉलो द राइट पाथ, you should be able to differentiate between right and wrong. Then passionate, people are, you can do something only if you are passionate about your work. Then clear aim and direction. Sometimes we want to do, we are enthusiastic but we don't know what to do, right?
उस टाइम पे इसका मतलब है कि आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं है, आपको ऐसे लोगों से मिलना चाहिए। उस टाइम पे हमारे लेक्चर्स आपका वो क्लियर डायरेक्शन देने के लिए ये लेक्चर्स हम करते हैं, राइट? ओपन माइंडेड, sometimes solutions are there and it's not with you students only, even sometimes we people are not open minded and we should channelize our mind always. We should be open minded, we should take ideas from others, we should encourage the ideas of others, we should learn from their ideas. So whenever we are doing something, we should be open minded. This is all about qualities of a good entrepreneur. Now suppose you want to be, आप कहते हो कि मैम मेरे पास एक आइडिया पर मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे जाऊँ इसके लिए, राइट? मैं क्या करूँ? तो ये वैसे कोई 6 स्टेप्स देता है, कोई 5 स्टेप्स देता है, कोई 10 स्टेप्स देता है नेट पे। तो ये कोई 11 स्टेप्स जो है ये स्टैंडर्ड स्टेप्स नहीं है, ये उन्हीं को लर्न करके आई हैव मेड ऑल दीज 11 स्टेप्स, राइट? यू आर नॉट इंटरेस्टेड? So first step is conceive idea. अब आइडिया आप कहते हो चलो मैम ने कहा है तो आइडिया कहाँ से आएगा, ठीक है? बहुत, अब मैं कल न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि एक लेडी जो है वो अपने डॉग्स को, उसने अराउंड 35 या इससे भी ज्यादा शायद डॉग्स हैं जिनको वो फीड करती है। काम है, मैं जस्ट ये नहीं कह रही इससे बिजनेस है, ये तो वो सोशल कॉज के लिए कर रही है, बट आइडिया देखते कहाँ से आया? वो जब बॉम्बे से दिल्ली में शिफ्ट करी तो उसने देखा कि जो नेबरहुड के डॉग्स हैं उनको कोई भी परवाह नहीं करता, तो उसने उनको फीड करना शुरू किया। अब एक डॉग को फीड करने के लिए इतनी मनी तो नहीं होती, तो उसने फिर एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया और उसकी सोसाइटी के लोगों ने उसको डिस्करेज भी करा, बट देन उसने अपना वो उसने पैशन थी, डॉग्स की हेल्प करनी थी, कोरोना टाइम पे फ्री टाइम भी मिल गया, तो उसने उनके लिए पैसे, उसके पास बहुत सारे नहीं थे। उसकी जो कल का आर्टिकल था न्यूज़पेपर में उसमें था कि अराउंड 30 to 35,000 जो है पर मंथ खर्चा। अब एक एम्प्लॉय तो इतना नहीं खर्च कर सकता, तो इंस्टाग्राम पे वो चैरिटी भी देती, बट आइडिया है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आइडिया, पर जिस आइडिया को आप कमर्शियलाइज ना कर सके उसको हम बिजनेस नहीं मानते। ऐसे ही एक एग्जीबिशन थी, उसमें क्या है कि एक हीटर ऐसा बनाया गया कि जब चूल्हा जलता है, आप में से जो गांव के लोग हैं उन्होंने देखा होगा चूल्हा जलता है तो नेचुरली हीट जनरेट करता है, तो एक ऐसा चूल्हा बनाया मैंने, शायद किसी ने एक्सप्लोर करा भी होगा बाद में वो, तो उसके आसपास जो है कि ऐसी जगह बना दी जाए कि उसमें पानी जो है गर्म हो जाए। किसी को गांव में, वैसे रूरल एरिया में जिनके पास कमी होती है ना किसी चीज की, आइडिया वहां ज्यादा आता है, बिकॉज दे वांट टू ओवरकम दैट थिंग, राइट? जो लग्जरी में पढ़ रहे होते हैं उनके पास आइडियाज कम आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जब हम इनोवेशन का ये पढ़ते हैं तो जैसे कि स्टूडेंट्स को फील्ड विजिट कराओ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, कि वो जाएं ऐसे एरियाज में, वहाँ की स्टडी करें, वहाँ की प्रॉब्लम्स करें। स्टडी तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम पहले एग्जिस्ट करती होगी, उसको आइडेंटिफाई करना इज द फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद आप लेट्स सपोज 10 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, तो आपने 10 प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व नहीं करोगे अपने बिजनेस में। आपने देखा होगा शार्क टैंक में भी जब वो एक प्रॉब्लम को करते थे फोकस तो उनको ज्यादा मिलता था कि ये एक प्रॉब्लम पे वर्क कर रहा है। अगर 10 पे शुरू में ही काम करने लग पड़ते थे देन दे वर नॉट गेटिंग मनी, राइट? तो एक प्रॉब्लम, अब उन 10 में से कौन सी प्रॉब्लम पे वर्क करें कि जिसमें सबसे ज्यादा मनी को बेनिफिट हो, मनी वाइज। कई बार चीजें होती हैं, हम कहें कि जी ये आइडिया है, वो कई बार प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है आज से 20 साल बाद वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, लेकिन अभी नहीं है, राइट? पेटीएम आया, पेटीएम जो है इतना शुरू में नहीं चला, लेकिन कोरोना में बहुत चल गया। ई लर्निंग की हमेशा लोग बात करते थे, लेकिन ई लर्निंग कोरोना टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, राइट? एक राइट टाइम भी होता है किसी चीज के पॉपुलर होने का। तो आइडिया जब आप अपनी सराउंडिंग्स में ढूंढोगे, सपोज आपको 10 आइडियाज आ गए हैं, तो आपने एक पे फोकस करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आइडिया कौन सा है। अब वो फोकस कैसे करना है,
क्या ये कमर्शियलाइज हो सकता है, क्या ये फिजिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या इसके लिए मनी अरेंज हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्केलेबिलिटी का कंसेप्ट आता है बिजनेस में। आज मैं देखो, कुछ साल पहले बहुत ज्यादा सेल लगती थी, आप टीवी, फ्रिज और माइक्रोवेव कॉम्बो ले जाओ। आज की डेट में, मैं आज से 10 साल पहले मैंने जो सेल्स देखी हैं वो अब नहीं आती। क्यों? एक टाइम था लोगों के घरों में माइक्रोवेव नहीं था और जो अपने टीवी थे वो भी चेंज हो रहे थे। बड़े बड़े साइज के ह्यूज टीवी जो थे दे वर रिप्लेस्ड बाय एलसीडी, एलईडी। तो इतनी ऑप्शंस आई और उस टाइम धड़ाधड़ बिके ये, राइट। लेकिन उसके बाद एक टाइम आया जब सैचुरेशन हो गई, सबके घरों में माइक्रोवेव, सबके घरों में एलसीडी, सबके घरों में फ्रिज, बड़े वाले, छोटे से हम बड़े वाले फ्रिज पे आ गए। अब उस बिजनेस का उतना स्कोप नहीं रह गया, सेल खत्म हो गई। आइडिया था किसी का, उसने उस आइडिया को एनकैश करा। तो स्केलेबिलिटी का मीनिंग तो समझते होंगे ना कि हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं। मैंने एक चीज बनाई, अगर वो किसी के घर में गई, अब टूथपेस्ट है, कोई बिजनेस कर रहा है टूथपेस्ट का, सबको पता जब खत्म होगा दोबारा चाहिए होगा, राइट। तो मीन्स कोई ऐसी चीज पे बिजनेस करना है जिसकी रिक्वायरमेंट बार बार जनरेट होती है, राइट। आपने देखा होगा कोरोना में सारे बिजनेस फेल हो गए, लेकिन ग्रोसरी का बिजनेस तो नहीं गया। ग्रोसरी तो हर घर में चाहिए थी ना, तो वो क्यों नहीं गया? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बनी रही लोगों की। लोगों ने अपना बाहर जाना बंद कर दिया, होटल्स में जाना बंद कर दिया, लोगों ने टूरिज्म बंद कर दी, टूरिज्म बिजनेस बैठ गया, होटल बिजनेस बैठ गया, मैरिज हॉल बैठ गए, लेकिन ग्रोसरी की शॉप्स चल रही थी बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट बनी रही, उनकी स्केलेबिलिटी बनी रही। तो बिजनेस भी वो करना है जिसकी वन टाइम रिक्वायरमेंट के बाद कोई चीज ना खरीदे, वो नहीं करना, राइट। वो इसका मतलब जो बिजनेस स्केलेबल नहीं है, दैट इज नॉट मीन्स उसका सर्वाइवल नहीं है लॉन्ग रन में। तो आप कोई भी बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं करोगे कि आप एक बिल्कुल ही सोशल कॉज है, अल्टीमेटली बिजनेस इसीलिए करोगे कि आपने उससे मनी लेनी है, प्रॉफिट कमाना है। तो ये जो मैंने कहा था ना कि एक हीटर है, सॉरी चूल्हा है, और चूल्हे के आसपास हमने उसने कुछ लगा दिया और उसमें पानी गर्म करने का कर लिया, तो वो जो हमने रॉ फॉर्म में देखा था, तो उसको कहते हैं फ्रूगल एंटरप्रेन्योरशिप, आइडिया लाना जस्ट। और इसको जस्ट की जिसको कहते हैं ना कि जुगाड़ नहीं कहते हम लोग, हिंदी में जुगाड़ वर्ड करते हैं, जुगाड़ कर लिया हमने। और छोटे शहरों में जुगाड़ बहुत होते हैं, राइट। घर में भी हम कई ऐसे जुगाड़ कर लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि किसी की बोन की डैमेज हो जाती है, तो क्या होता है? प्लास्टर लगता है। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? वो बड़ी बड़ी फटियां बांध देते थे उस चीज को सीधा रखने के लिए। बेसिक पर्पस क्या होता है प्लास्टर का? कि वो चीज जो है बिल्कुल सीधी रहे और वो जुड़ जाए। ह्यूमन बॉडी में बल्कि प्लास्टर का और कोई रोल नहीं है। प्लास्टर का सिर्फ ये रोल है कि जिस तरीके से आपकी बॉडी है उस तरीके से उसको सेट कर दो ताकि वो अपने आप वहां पे जुड़ जाए, राइट। तो पुराने लोग क्या करते थे? उस टाइम जुगाड़ करते थे, प्लास्टर नहीं था उस टाइम पे वाला, तो वो फटियां ऐसे बांध देते थे कि वो चीज वहां से हिले नहीं। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं जुगाड़ और फ्रूगल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो बहुत सारी जो इनोवेशन सामने आई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप इसको करोगे, अपना गूगल सर्च करोगे, तो यू विल फाइंड मैनी। नाउ कमिंग बैक टू फर्स्ट कि आपने आइडिया कंसीव करना है। आइडिया शुड बी यूनिक, क्रिएटिव। आप बहुत सारे आइडियाज को कंबाइन करके एक नया बना सकते हो, राइट। बहुत सारे बिजनेस जो थे, प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे थे ओवर द इयर्स? उनके पास लोग जाते थे कि हमने प्रॉपर्टी बेचनी है, सेलर भी आते थे और बायर भी आते थे। अब ओला कैब्स है, उसमें क्या है? बहुत सारे लोग वहां जॉब लेने के लिए जाते हैं कि हम आपकी टैक्सी चलाएंगे, और बहुत सारे लोग उन टैक्सी की सर्विसेज अवेल करते हैं। है तो पुराना ही बिजनेस, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, वेबसाइट पे सब कनेक्ट हो गए हैं, बायर भी और जो आपका बायर और लेटर सब वहीं पे जा रहे हैं, राइट। बिजनेस बदल गया। उसी वेबसाइट का करके देख के जोमेटो आ गया, जोमेटो पे ही सारे रेस्टोरेंट्स आ गए, राइट।
और वहीं पे लोग अपने बिजनेस को उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं और आप लोग घरों में बैठ के जोमेटो सर्विस को अवेल कर रहे हैं। राइट, आइडिया है ना। खा तो पहले भी रहे थे, ठीक है, रेस्टोरेंट भी पहले थे, लेकिन अब क्या है, एक डिफरेंट वे में उनको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइडिया मीन्स चीजें वही हैं, उनको एक नए तरीके से आपने सोचा, किसी ने तो सोचा। देन कोई ना कोई प्रॉब्लम, जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, गवर्नमेंट से फंडिंग की बात करते हैं, तो वी शुड, आवर आइडिया शुड बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट, नॉट एग्जिस्टिंग, बल्कि इट कैन बी एग्जिस्टिंग, इट कैन बी न्यू वन, कि जो पहले कभी किसी ने नहीं सोची कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप सोच रहे हो, आपका नजरिया मेरे से ज्यादा मॉडर्न होगा, राइट, क्योंकि आप और भी चाहोगे कि आपके टाइम में इस तरह से चीजें होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये मैंने पहले भी बता दिया कि आपके पास आइडिया है, उसको आइडिया फिजिबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, उसको मोनेटाइज करना आना चाहिए। अगर आप उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते तो वो आइडिया बिजनेस नहीं बन सकता। देन आइडिया बना लिया लेकिन माइंड में है, जब तक आप लिखने नहीं लगोगे, आप लिखोगे नहीं, तब तक आप प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बहुत बार हम कहते हैं बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी हम, लेकिन जब तक लिखने बैठते हैं तो कुछ समझ नहीं आता क्या लिखें। सो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन यू ट्राई टू राइट इट इन क्लियर कट वर्ड्स, ठीक है। फिर उसके रीजन लिखें कि आपने इस प्रॉब्लम को चूज क्यों करा। मैंने आपसे सुबह एक क्वेश्चन पूछा था, आपको रिपोर्ट लिखने आती है, राइट। हम लोग कई बार बहुत जल्दी में भी रिपोर्ट्स बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, बट प्रॉब्लम डेफिनेशन, रीजन टू चूज दैट प्रॉब्लम, फिर उस प्रॉब्लम को कौन सा सेगमेंट, डेमोग्राफी मीन्स कौन सी जनसंख्या है, कौन सी पॉपुलेशन है जो उससे इफेक्ट हो रही है। एक बार मार्केटिंग का लेक्चर अटेंड कर रहे थे तो आई वॉज रियली सरप्राइज कि उन्होंने बताया कि LIC की पॉलिसी लेनी है, ठीक है। तो उन्होंने किस तरह से सेगमेंट को सेपरेट करा कि LIC की पॉलिसी जो गरीबी रेखा से नीचे है उन सबको अलग कर दो, वो क्यों लेगा, उसके पास तो वैसे ही पैसे नहीं है। फिर एक फैमिली है, मेडिकल, अगर LIC मेडिकल लेनी है उन्हें इंश्योरेंस, एक फैमिली में 4 लोगों की इकट्ठी भी हो जाती है। ऐसे कर करके उन लोगों ने कुछ हजार रह गए कि ये 1000 लोग जो है ये हमारी टारगेट बिजनेस के लिए टारगेट है, राइट। तो ऐसे में जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो यू शुड बी अवेयर अबाउट टारगेट ऑडियंस। आपको लगता है कि इंडिया इतनी करोड़ पॉपुलेशन का है, लेकिन उसमें से जब आप बिजनेस के लिए टारगेट ऑडियंस ढूंढने जाओगे तो आपको हो सकता है 50,000 लोग भी ना मिले। सो यू शुड बी नोइंग कि आपका बिजनेस किसको इम्पैक्ट करेगा, राइट। देन नेक्स्ट इज डिफाइन पोटेंशियल सोल्यूशन। आपके पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई लेकिन सोल्यूशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं। और कई बार क्या होता है कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, आप एक ग्रुप में बैठते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो, दे कैन गिव यू द सोल्यूशन। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि व्हेनेवर आई फाइंड अ प्रॉब्लम आई डिस्कस इट विद माय फ्रेंड्स, तो सोल्यूशन अपने आप ही मिलने शुरू हो जाते हैं, अपने माइंड को क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है हाउ टू हैंडल इट, राइट। तो whenever you have an idea, even during PhD, our guide was saying कि ये आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करो, लोग आपको जो जितने क्रिटिक होंगे उतना बेटर सोल्यूशन मिलेगा आपको, राइट। तो सो इसको अवॉइड मत करिए, डिस्कस योर प्रॉब्लम और उसके साथ जो जो सोल्यूशन मिलेंगे हो सकता है आपको उसमें कुछ और बेटरमेंट करके एक बेटर सोल्यूशन मिल जाए। तो हम एक डबल डायमंड अप्रोच भी कहते हैं इनोवेशन में। जब पढ़ोगे डिजाइन थिंकिंग पे तो डबल डायमंड अप्रोच क्या कहती है कि जैसे इस टाइप से अगर आप डायमंड बनाते हैं, एक डायमंड ऐसे बना फिर ऐसे बना, डबल डायमंड अप्रोच। एक डायमंड ये है, एक डायमंड ये है। यहाँ पे आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, फिर जीरो ऑन करी, ठीक है, फिर यहाँ पहुंच गए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके, फिर आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आए, फिर आपने उस सॉल्यूशन में से किसी एक को चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ जो आज हम पढ़े। मार्केट को कौन ज्यादा कर पाएगा, किसकी स्केलेबिलिटी ज्यादा होगी, किसको मोनेटाइज करना आसान होगा, किस पे प्रेजेंटेशन दूं तो वो बेटर जाएगी, राइट।
तो आपके पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, देन सोल्यूशन, देन प्रोज एंड कॉन्स उसके सारे देखिए कि इसके एडवांटेज क्या है, इसका करोगे तो एडवांटेज क्या होगा, इसका करोगे तो नुकसान क्या होगा। देन एग्जिस्टिंग सोल्यूशन तो नहीं है उसके लिए कोई, कई बार हम सोचते हैं ये प्रॉब्लम हम ही फेस कर रहे हैं, बट कहीं किसी कंट्री के दूसरे पार्ट में उसके लिए सोल्यूशन भी दिए होते हैं। तो आप फिर उनको सर्च करिए, गूगल बाबा तो है ही, सर्च करिए कि ऐसा किसी ने काम किया हुआ है और आप उसमें क्या चेंज कर सकते हो, राइट। फिर कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करिए, आजकल गवर्नमेंट इतने हैकेथॉन्स वगैरह करा रही है। आई वुड अप्रिशिएट कि हमारे कुछ बच्चों ने टॉयकाथॉन में पार्टिसिपेट करा था, आई थिंक वो क्लास पास आउट कर दी है ना। अदरवाइज हमारे बच्चे जो थे उन्होंने टॉयकाथॉन क्या था, ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कहा कि इंडियन कल्चर के टॉयज को प्रमोट करना है, तो उस पर उन्होंने आइडियाज मांगे। तो अराउंड 5 टीम्स हमारी जो है ग्रैंड फिनाले तक गई। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने प्राइज जीता या नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने एफर्ट तो किए, और पहली बार ही करके हमारे बच्चे ग्रैंड फिनाले तक गए, हमें ये बहुत अच्छा। देन इज फाइंड को-फाउंडर। आप सब कुछ नहीं हो सकते, यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स, यू शुड नो योर वीकनेसेस। आपके पास आइडिया हो सकता है, आपके पास एंथी हो सकता है, आपके पास लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की कैपेबिलिटी हो सकती है, बट हो सकता है टेक्निकल नॉलेज ना हो, आपको नहीं पता कि वेबसाइट कैसे बनाना है, अगर पता भी है तो आपको ये नहीं पता कि उसको अच्छा कैसे करना है, आपको ये नहीं पता कि ग्राफिक डिजाइनिंग उसकी किससे करवानी है। देन व्हाट यू डू, आप सारी चीजें लर्न नहीं करने बैठ जाते आप, क्योंकि जब तक लर्न करोगे तब तक तो आइडिया ही ऑब्सोलीट हो जाएगा। व्हाट यू डू, यू मेक अ टीम जिसमें हर कोई आपकी टीम को कंप्लीमेंट करता हो, किसी की कोई स्ट्रेंथ हो, किसी की, आप देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कुछ एमपीएस लिए जाते हैं मार्केटिंग के लिए, कुछ टेक्निकल लोग लिए जाते हैं, क्यों, सब एक दूसरे के स्किल सेट को कंप्लीमेंट करते हैं, राइट। तो आपने एक टीम बनानी है, जैसे कॉलेज में भी हैकेथॉन हम कराते हैं, आप अपनी एक टीम बनाइए, एक जो है आइडिया को प्रेजेंट करे, एक आइडिया पे टेक्निकली वर्क करे, एक मतलब कि 2-3 टेक्निकली कर ले, क्योंकि हम तो यहाँ टेक्निकली है ना सारे। तो फाइंड को-फाउंडर्स। दूसरा, कभी ग्रुप वैसा नहीं होना चाहिए जिसमें एक दूसरे की लेग पुलिंग हो। अगर ग्रुप में आप ऐसे लोग कर लेते हो तो फिर आप आगे नहीं जा पाओगे। ग्रुप कैसा होना चाहिए, कोहेसिव, जो आप में जो कमी है उसको दूसरा पूरी कर दे, देन यू आर अ वंडरफुल टीम। ठीक है, आपने को वर्कर्स ढूंढने हैं, और आप कहो कि पहली बारी में ही सही डिसीजन हो जाएगा, विद पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपेरिमेंट, यू लर्न हाउ टू फाइंड गुड को वर्कर्स। तो आपको टाइम देना पड़ता है, और अगर आपको किसी ने चूज भी कर लिया एज ए को वर्कर, तो यू शुड बी ट्रस्टवर्दी। ये नहीं कि आप सोचो कि मैं तो अपना ही देखो, अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो तो लॉन्ग रन में आपकी एसोसिएशन नहीं रहेगी। देन एड वैल्यूज टू द आइडिया ऑफ फाउंडर। आप सपोज आपको लगता है कि मैं, फाउंडर ने एक आइडिया दिया, आप उसके टेक्निकल टीम में आ गए, थोड़े सालों बाद आपको लगना शुरू हो जाता है यार करता तो मैं ही हूँ सब कुछ, मेरा बेनिफिट ये लिए जा रहा है। जिस दिन ये बात आ गई उस दिन वो कंसेप्ट खत्म हो गया, राइट। मीन्स वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट, राइट। तो बल्कि कंप्लीमेंट स्किल सेट जो है यहाँ पे कीवर्ड है। नेक्स्ट इज फाइंड मेंटर एंड कम्युनिटी, राइट। अभी गवर्नमेंट तो स्कूल के बच्चों का भी बना रही है, अभी मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी। उसने +1 में जाने गया, कोटा में गया रितेश, एंड ही सॉ कि मैं मतलब यहाँ पे जेई मेन नहीं करना, उसके पेरेंट्स ने उसको जेई मेन करने के लिए, क्लियर करने के लिए कोटा में भेजा, और उसने क्या करा, वहां पे बैठ के एक बुक लिखी जिसमें 100 इंजीनियरिंग कॉलेज का डाटा था कि कोई भी वहां पे सर्च करे तो उनको इंजीनियरिंग कॉलेज की इंफॉर्मेशन मिल जाए, राइट। तो ही थॉट डिफरेंटली, राइट। और अब वो एक टेक्नो एंटरप्रेन्योर है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिटी में आपके पास केवल आइडियाज होते हैं, आपको पता है कि मैंने वेबसाइट चाहिए, लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए नहीं चाहिए, पैसा कहाँ से लूँ, तो मेंटर, या हाँ रोल आता है मेंटर्स का, आपके टीचर आपके मेंटर हो सकते हैं। अगर हम टीचर्स में भी, क्योंकि हम भी आज से 4 साल पहले ही मैं इस एसोसिएशन काउंसिल का पार्ट बनी, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एकदम से तो एंटरप्रेन्योरशिप आ नहीं जाएगी, दो आई एम गिविंग यू लेक्चर, आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग, बट हियर वी गिव द प्लेटफॉर्म where we can means अगर आपके पास आइडिया है तो we can means have one person as mentor। जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं
जिनमें मेंटरशिप का रोल है, कांत अग्रवाल करते हैं और भी कई लोग करते हैं। तो आपके पास आइडिया अगर होगा तो हम उनके इंक्यूबेशन सेंटर में आपको भेज सकते हैं, राइट, उनके स्टार्टअप में आपको भेज सकते हैं, बट यू शुड कम फॉरवर्ड। देन इज यहाँ पे भी जैसे मैंने लिखा टाइकॉन 2022, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनमें अगर पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हो, जाके देखो लोग कैसे सोच रहे हैं, उनकी एग्जीबिशंस को देखो, ठीक है, नेट पे उनके जो पढ़े हैं रिव्यू पढ़े हुए हैं, नहीं जाने का चांस मिला तो उनके रिव्यूज को पढ़ो, राइट, तो आपको वहां से आइडिया मिलेगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कैटलिस्ट फॉर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन अबाउट कम्युनिटी, फूल कन्या कम्युनिटी, मैंने यहाँ तीनों लेडीज विमेन को फोकसिंग जो कर रहे हैं उन्हीं का नाम लिखा है। तो ये सब लोग जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, फंडिंग करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आपकी सपोर्ट, कई बार बिजनेस घर में पेरेंट्स होते हैं, दे कैन गाइड यू, आपके फ्रेंड्स गाइड कर सकते हैं, आपके राइट कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको मेंटर चाहिए। इवन कॉलेजेस में भी इंक्यूबेशन यूनिट बनाने का अब हायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ये प्रोविजन करी है। यहाँ पे नीचे हमारे एक इंक्यूबेशन यूनिट बना है जिसको पता नहीं नाम L1 हम कहते हैं, वहाँ MST के स्टूडेंट्स, PGI के स्टूडेंट्स आके वहाँ पे अपने आइडियाज को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज राइट बिजनेस प्लान। अराउंड 2-3 लेक्चर्स हम हर साल कराते हैं हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान, राइट, बिजनेस प्लान को और बिजनेस कैनवस मॉडल। इस पे इनका एक पर्टिकुलर वे है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं और जिनके पास स्किल सेट है, ये भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इनको पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि बिजनेस मॉडल कैनवस होता है, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इवन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे और उनका वर्कशॉप्स लगाई, तो मैंने देखा कि उन्होंने जो शीट बनवाई वो बिजनेस मॉडल कैनवस था, राइट। तो आपको ये टर्म पता हो तो आपको नेट पे वो शीट मिल जाएगी कि आपने यहाँ यहाँ ये भरना है, उसके आपको एक एग्जाम्पल्स भी मिल जाती है कि हाउ टू फिल दैट। बट यू शुड बी अवेयर अबाउट कि सच थिंग्स एग्जिस्ट। आपने एक आइडिया आया, आपने बनाया, आपने मेंटरशिप सपोर्ट मांगी है, आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए बिजनेस प्लान लिखनी है, बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, राइट। जैसे आप एक रिपोर्ट लिखते हो, आपको पता है हेडर देना, फुटर देना है, ऐसे ही बिजनेस मॉडल कैनवस में क्या क्या होता है, यू शुड बी नोइंग दैट। अगर आपको ये पता होगा तो आप कुछ कर सकते हैं। देन मिनी प्लान बना सकते हैं। शुरू में ही आप कहो कि मैं 50 पेज की रिपोर्ट बना लूंगा, ये पॉसिबल नहीं। आप एक मिनी प्लान बनाइए, धीरे धीरे वो प्लान आप बड़ा कर सकते हैं, राइट। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वे में अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। रिपोर्ट जितना आपका आइडिया इंपॉर्टेंट है उतनी ही रिपोर्ट राइटिंग भी। आपको अपना देखिए, शार्क टैंक में हो सकता है आपको लगाओ ये आइडिया तो बहुत बढ़िया था, लेकिन सपोर्ट नहीं मिली उनको शार्क टैंक में, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं थी, उनकी मार्केट सर्वे उन्होंने उतना बढ़िया नहीं किया हुआ था। फिर अपनी जब आपको आइडिया मिल गया, आपको सोल्यूशन मिल गया, आपको पता चल गया कि आपने कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो ही जाता है ना कि ये इस चीज को बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे, या मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं आप। उस टाइम पे फिर आप अपना कि मैं ये मनी अपने से दे सकता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए वो जॉब नहीं करते, ठीक है। जॉब से जो पैसा निकलता है वो अपने बिजनेस में धीरे धीरे लगाते रहते हैं, एंड वन डे दे लीव द जॉब, राइट। तो पहले वो फंडिंग मैंने खुद करनी है, पेरेंट्स से लेनी है, रिश्तेदारों से लेनी है, बैंक से लेनी है, या मैंने कहाँ से लेनी है, तो दैट इज डिसाइडेड एट दिस स्टेज कि आपने बिजनेस प्लान लिख लिया, यू आर वेरी क्लियर अबाउट कि मुझे इतनी फंडिंग चाहिए, राइट। देन इज मार्केट रिसर्च। ये कंपोनेंट लिखा तो मैंने 9th नंबर पे, ठीक है, लेकिन आपको हर स्टेप पे मार्केट सर्वे की जरूरत है। अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी तब भी आपको फ्रेंड्स के बीच में बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि अगर ये आइडिया आता है मार्केट में तो इसको कितने लोग लेंगे, राइट, कितने लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो मार्केट सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे कर सकते हो, लोगों के साथ बात करके आप फॉर्म करवा सकते हो। जैसे हम अगर सपोज हमने कोई वर्कशॉप भी अरेंज करनी है, हम फॉर्म भरने के लिए कहते हैं, 10 लोग करते हैं, आई थिंक फायदा नहीं है, राइट। तो मीन्स आप सर्वे कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फोकस ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, कस्टमर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ आपसे पूछ लूँ कि कितने लोग हमारी वर्कशॉप के लिए आएंगे, उनके रेज्ड हैंड्स पे मैं काउंट करके अंदाजा लगा लेंगे। मीन्स देयर आर डिफरेंट वेज टू डू द मार्केट रिसर्च।
देन आपने बिजनेस में जाना है। आपने देखा होगा हर साल प्रोडक्ट इम्प्रूव्ड आते हैं, राइट? पहले भी कभी एसी बना होगा, विदाउट रिमोट बन गया होगा, फिर रिमोट आने शुरू हो गए, फिर और भी ऑटो कट लगने शुरू हो गए, फिर स्लीपिंग टाइम पे मतलब स्लीपिंग के बाद 2-3 घंटे बाद आप उसको बंद भी कर सकते हो। तो ये सारे फीचर पहले वाले प्रोडक्ट में तो नहीं आ गए थे। तो फर्स्ट टाइम जब आप एक उसका प्रोटोटाइप बनाते हो तो आप एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाते हो, राइट? फिर आप एक कंपनी को रजिस्टर करते हो। आप उस पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास आइडिया आया, आइडिया चुराया भी लिया जाता है। हो सकता है आपके पास आइडिया आया, कोई इतना मतलब कि इंटेलिजेंट है कि उसने आइडिया तो आपसे सुना और आपसे पहले मार्केट में ले आया। तो कोई आइडिया जो बिल्कुल यूनिक है उसको पहले कॉपीराइट करो। उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है उसकी कपिला एक है फैसिलिटी। कभी किसी के पास आइडिया आए तो नेट पे जरूर सर्च करिए कि IPR के लिए गवर्नमेंट कहाँ हेल्प कर रही है, कैसे मैंने उस आइडिया को पेटेंट करवाना है। देन अपना प्रोडक्ट बनाइए, मार्केट करिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट्स करिए। फीडबैक इज कंपल्सरी, राइट? आपने देखा होगा कहीं भी जाओ तो फीडबैक लेते हैं, इसलिए लेते हैं सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर सर्विसेज, सो दैट दे कैन इम्प्रूव द प्रोडक्ट, राइट? फिर उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट की जाती है। देन इज अब आपका बिजनेस अच्छे से सेट हो गया है, यू शुड बी इन ग्रोइंग मोड। ग्रो कर लिया तो बैठ जाओगे क्या? अगर वहीं बैठ गए तो आप ऑब्सोल्यूट हो जाओगे। यू हैव टू थिंक ऑलवेज इन डिफरेंट डायरेक्शंस की क्या और किया जा सकता है, कैसे इसको बेटर बनाया जा सकता है, राइट? तो आपने एक्सपेंशन के लिए सोचना है। वंस बिजनेस इज रेडी फिर एक्सपेंशन की करते हैं। आप क्या सोचते हैं, जिसने कभी बिजनेस बनाया होगा, आज कहते हैं कि टाटा जो है वो एक नीडल से लेके एरोप्लेन तक बनाता है। तो फर्स्ट टाइम तो किसी एक चीज से शुरू किया होगा ना, धीरे धीरे एक्सपैंड किया होगा बाकी बिजनेस। तो इसलिए यहाँ पे है कि घरों में भी बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं, दे मेक थिंग्स अपने आइडिया से। 11 पॉइंट जर्नी जो है वो आपकी मैंने कवर कर दी है। होपफुली यू विल गेट सम आइडियाज फ्रॉम दैट। नाउ जस्ट कि आइडियाज आए कहाँ से? वैसे तो मैंने पहले ही इसको कवर कर दिया है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं घरों में देखा कि लाइट है ना, जैसे मुझे उठना बड़ा मुश्किल लगता होता है कि सुबह उठो तो लाइट जगनी होनी चाहिए, तो बेड स्विच होना चाहिए। आजकल आम ही होता है, पर मैं तब भी लगवाती थी जब आज से 30-40 साल पहले भी मैं अपने बेड पे बेड स्विच लगवाती कि ये होना चाहिए, राइट? तो ऐसे जो आइडियाज अपनी प्रॉब्लम से आए, स्टेयरकेस की लाइट है, बच्चे नहीं बंद करते हैं, पेरेंट्स को करनी पड़ती है, ऊपर चलेंगे नीचे चलेंगे, दोनों तरफ होने चाहिए, डबल स्विच आ गई है ना, जरूरत थी। मदर्स जो है बार बार तो नहीं पीछे जा सकती। ऐसे ही टूथब्रश कितनी बारी लेफ्ट करें राइट करें, तो ऐसे ही फ्रेंड ने कई आइटम्स अपने घर में बनाई जो बच्चे नहीं यूज करते थे, तो उन्होंने टूथब्रश के टाइमर वाले बना दिए, एक बार इधर करना है, एक बार इधर करना है। और इनोवेशन क्या है, आपके जो भी आइडियाज हैं उनको रियलिटी में चेंज करना। अब कोरोना आया, कोरोना के टाइम पे हमें सैनिटाइजर चाहिए था, ठीक है? सैनिटाइजर तो पहले भी थे मार्केट में, लेकिन कोरोना टाइम में हमें उनको टच नहीं करना। तो कितनी मतलब उस टाइम पे कंसेप्ट्स आ गए हैंड फ्री सैनिटाइजर्स के, राइट? ये केस स्टडी है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। तो मीन्स कि हमारी कितनी नेसेसिटी है, उससे भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो चलती है। फिर है कि स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है। दिस इज जस्ट अ लिस्ट। एंटरप्रेन्योर में क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस थिंग, क्योंकि पहले बिजनेस में आइए फिर इनका डिफरेंस भी। स्मॉल बिजनेस जैसे कोई भी एक फैमिली बिजनेस ले लेता है तो रिस्क कम होते हैं, स्टार्टअप में रिस्क ज्यादा होते हैं। एंटरप्रेन्योर जब आप एक लेवल से आगे बढ़ जाते हैं तो वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू थोड़ी इंस्पायर करने के लिए कि कुछ आपको लगे कि आप भी कर सकते हैं। नारायण मूर्ति को सब जानते हो, इन्फोसिस में आके सबका काम करना, कंप्यूटर्स में है तो सबका काम करना एक ख्वाब होता है, राइट? तो इज द पर्सन जिसको IIT में जेईई मेन क्लियर हो गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे,
राइट। और वो उसने इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कहीं और से, किसी कोई लोकल कॉलेज से, लेकिन फिर भी उसमें एनक्यू था, हिम्मत थी, तो वो फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर तो बन ही गया। मीन्स अगर आपके पास पैशन है तो आपको कोई चीज रोक नहीं सकती। मेक माई ट्रिप है, वही बायर और सेलर है ना, इकट्ठे करे हैं उसने। इंडिया का लीडिंग ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है, कंप्यूटर्स इन्वॉल्व है, इसलिए इनको डिस्कस कर रही है, राइट। ट्रेवल पैकेजेस हैं, होटल्स, फ्लाइट्स, रेल, बस टिकट, ये सारा उसने क्या करा, पढ़ा कहाँ से है, IIM अहमदाबाद से। पर क्यों अहमदाबाद के ही लोग जो हैं वही सिर्फ बने एंटरप्रेन्योर? बहुत सारे लोग जो छोटे शहरों से भी हैं या वो आइडियाज लेके दे कैन बी एंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग ऑन दैट, राइट। अभी जितने भी आएंगे आप मेजरली देखिएगा कि उनमें से IIM के हैं, IIT के हैं, बट एवरीवन कैन बी, राइट। ये जरूरी नहीं है कि उनके पास ही आइडियाज होते हैं। बुक माई शो, इट वॉज फाउंडेड बाय आशीष हिमराजानी, ठीक है। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये काम किया, अकेले तो कोई काम नहीं हो पाता, कोई ना कोई तो आपको सपोर्ट करने के लिए चाहिए होता। ओला कैब्स, रवीश अग्रवाल एंड अंकित भट्टी, इन्होंने आज की डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी चल रही है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो डाउन भी जा रहा है बिजनेस को। कई बार क्या होता है कि एक लेवल आता है और भी लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, स्टैग्नेशन हो जाता है, यू हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली, राइट। देन ओयो, कुछ साल पहले आपने कभी देखा था कि किसी होटल के बाहर ओयो होटल लिखा? अब ऑलमोस्ट जो भी होते हैं ओयो होटल्स लिखे होते हैं। क्यों? उन्होंने क्या करा होता है, इसने कि टाइप किया होता है कि आपके इतने रूम्स तो सारा साल ही बिजी रहेंगे, राइट। उनको उनकी पेमेंट मिलती है, कुछ रूम्स को हर होटल में लेके रख देते हैं। आप जाइए यहाँ पे सोलन साइड पे तो आपको काफी होटल्स में जाएंगे, राइट। शरण इसी की बात करी थी, रितेश अग्रवाल की। इन्होंने एक कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया बना दिया टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज का, जब ये 11 करा, राइट। नायका, इस लेडी ने 50 के बाद किया, ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है ना, कि 50 के बाद भी बिजनेस किया जा सकता है। 25 साल इसने कारपोरेट सेक्टर में काम किया, ठीक है। खाना खाना भी बहुत जरूरी है। आपने काम किया, आपने अर्न किया, आपने एक्सपीरियंस लिया, शी कैन स्टार्ट बिजनेस। हो सकता है एक दिन मैं भी कर दूँ, राइट। और आज की डेट में तो आप सबने नायका से कुछ ना कुछ तो खरीदा ही होगा। एज इज जस्ट अ नंबर। आपकी मदर्स, आप घर जाके आपकी मदर्स के पास आइडियाज हैं, आप उनको एनकरेज कर सकते हैं, ठीक है। जोमेटो, स्विगी, मैंने लिया एक ही है, बट ये सब वही कि बायर एंड सेलर को कैसे इकट्ठे करना। आइडियाज डिफरेंट हैं, ओला कैब्स का, मेक माई ट्रिप का, ठीक है। लेकिन एक आइडिया तो यही आया ना कि कंप्यूटर एक वेबसाइट बनाएं जिसके थ्रू चीजें आसान हो जाए। ये मॉडल सबने यूज किया, ये मॉडल एयरएमबी मॉडल कहते हैं इसको। बायर सेलर्स को थ्रू वेबसाइट कनेक्ट किया हुआ। इन सब ने इन्हीं मॉडल, इसी मॉडल को बेस बना के सर्विसेज अलग अलग तरीके से दी। अब कुछ मूवीज ये आपको देखनी चाहिए। वैसे तो मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी थी, मुझे लगा 4-5 और बताए, अपने साथ 5 और बताए, ठीक है। द सोशल नेटवर्क, ये जुकरबर्ग के लाइफ पे है। पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली, एप्पल के स्टीव जॉब्स और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स पे है। स्टीव जॉब्स पे भी है, स्टार्टअप किड्स पे है, फॉलो एंड एंटरप्रेन्योर पे है। तो ऐसी मूवीज जो है ये देखनी चाहिए। और एक हिंदी मूवी भी आई थी, गुरु। हालांकि कहते हैं कि वो रिलायंस इंडस्ट्री के धीरू भाई अंबानी पे थी,
कि कैसे वहाँ पे कुछ अनएथिकल चीजें थी, उस मतलब कि जो धीरूभाई ने कुछ करी चेंजेस, बट कुछ चेंजेस, कुछ रूल्स जो थे, जो हिंड्रेंस थे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसने जब एक कॉल करी तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज करे वो रूल्स। तो विल होनी चाहिए। आप गुरु मूवी भी देख सकते हो हिंदी में। ये कुछ लोग जो इंस्पायर करते हैं। इस पर्सन में जो बीच में पर्सन है, ये एक नाई था, बार्बर था। इसने क्या करा, प्लीज कर, इसने क्या करा कि इसने एक लग्जरी कार खरीदी एंड देन अब इसकी कारें जो हैं वो मूवीज, अगर कि में यहाँ लिखा पढ़ा तो नहीं जाएगा, लेकिन ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन सब इनकी कारों को रेंट पे लेते हैं। ये स्टार्टअप इंडिया, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो, आपके पास आइडिया हो तो वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टअप इंडिया। यहाँ से आपको वेंचर फंड्स मिल जाते हैं, एंजल फंडिंग पे, वेंचर फंडिंग पे हम लेक्चर करवाते हैं कि कैसे आपने फंडिंग लेनी है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। आपने अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना है तो एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड क्वालिफिकेशन को बढ़ाना है तो ये सेंटर्स हैं। बहुत सारे अब तो ऑनलाइन टूल्स हैं, कोजिरा आपको पता होगा, एलिसन, उद्मी, एनपीटीएल, स्वयं, इन पे जाके आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। बाय द टाइम यू फिनिश योर क्लासेस, साथ में आप स्वयं पे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज कर सकते हो। देन दिस इज वर्स फ्रॉम भगवद गीता। कोई भी एक्शन किस एनवायरनमेंट में आप कर रहे हैं, कर्ता आपको पता होगा, डूअर ऑफ एक्शन, द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड, द प्रोसेस विच इज फॉलोड और डिवाइन इंटरवेंशन। जैसे मैंने पहले बात की, पेटीएम जो था वो हमेशा से था, ई लर्निंग टूल्स हमेशा से थे, लेकिन सक्सेसफुल कब हुए, जब बाकी सारी चीजें खत्म हो रही थी कोरोना के टाइम में, राइट। तो एक डिवाइन लक उसके बाद होती है। देन you should know how to be successful, set goals, embrace failures जो हैं वो हर एक की लाइफ में आते हैं, उनको पकड़ के नहीं बैठना होता। That's why it is said कि failure is the stepping stone to success। अपनी मिस्टेक से लर्न करना होता है और कभी किसी को ये मत कहने दो कि तुम ये नहीं कर सकते, you can do everything, right? Or again, impetus on this thing, you should be job creator and not job seeker. I will say कि it's your choice whether you want to be affected by work or you want to affect the work, right? ये आपकी चॉइस ही हमेशा रहेगी कि आपने क्या बनना। कई बच्चे पढ़ते नहीं है तो मैं उस टाइम पे यही बात कहती हूँ कि इट्स योर चॉइस कि आपने माँ बाप की कार में घूमना है या अपनी में, ठीक है। माँ बाप एक लिमिट तक आपको अपनी कार में घुमाएंगे, उसके बाद आपको लेनी ही पड़ेगी, अगर नहीं तो फिर आप रास्ते में आ जाओगे। इट्स योर चॉइस। देन लास्ट थिंग, टीचर आपको ये बता सकता है कि भाई ये सोचना चाहिए। आई कैन टेल यू कि यू शुड बी जॉब क्रिएटर, नॉट जॉब सीकर, बट चॉइस आपकी है, सोचना आपने है, आइडिया आपने लेना है, राइट। हियर आई कंक्लूड विद दिस कि टीचर शुड टीच हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। आइडिया क्या लेके आओगे ये मैं नहीं बता सकती, राइट।